Hello, good morning everyone. I welcome all of you to the lecture Python programming. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Is it visible to you? Is this presentation Yes, sir. visible? Okay. In today's lecture, we will discuss about the basic syntax of the Python. You know, it is similar of other programming language, but there are some little differences because it is similar like English or any other communication language. Here you will learn the basic syntax of the Python 3. There are Python 2, Python 3 versions. The little bit differences in between Python 3 and Python 2. We will see that later. The Python statement end with the token. Every Python statement end with the token new line. Character carriage return. It means each line in a Python script is a statement. Suppose you have press enter at every line, then it will become a new line, new statement. The following script contain the three statement in the separate lines. You can see the example Python statement. Here print in bracket written in quotation id colon comma 1. Now what will be the output of this line? id colon 1. This will be print. id colon 1 will be print. And here press enter key and another statement is written on second line. There is no semicolon or there is no any other extra things written here. Just press the enter for new line. Just press the enter for new statement. Second statement is print first name Steve, print last name Jobs. There are three statements and these three statements are written by just pressing enter key and taking the statement on new line, content on new line. There are only just taken the enter key, new lines to separate the statement. Practically also you can see use backslash. This is the backslash. This backslash to join a statement span over multiple line. There is an example you can see in this example. 200 less than or equal to 300 and true not equal to false, then print hello. If this is not true, then this statement will be print, and this is joined at in this line. This is joined at in this line by using this slash. Practically also we can see
the first program we'll see this line statement. Okay, for that in last lecture what we have installed Python. In last lecture we installed Python. To start it we can go to the start and put here Python or Py. Then ideally integrated development environment will be visible. You see this is the app. We have to go here in this app. This is the command line or we can say shell. In this place we can write the code as here. Just we will copy it. Just we are going to copy. This is the code we have copied and we are putting it here. Here line by line will be execute. You see this is the first line, only this first line will be execute here. What will be the output of this line? ID colon 1. Yes, you see ID and 1. This is written in single quote because this is the character and this is number no need to put the quote. Okay, print name Steve. Second line we will execute. Then here second line will be executed and output will be like this. Then third line output will be jobs, last name jobs. Similar type of a program we can also perform in a script. So सर हे तिन्ही लाईनचा आउटपुट एक सोबत नाही येऊ शकत का? हाँ येऊ शकतो ना, कारण हे जे आहे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है. कमांड लाइन में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है. अगर आपको एक साथ प्रोग्राम करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट राइटर. तो अभी इसमें अपन देखेंगे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ लेंगे. यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर में ये जो है पाइथन स्क्रिप्ट एडिटर है, इसको आपको सेव करना पड़ेगा. अपन इसको सेव कर देंगे अपने फोल्डर में. अपना फोल्डर एक बना दिया है मैंने सिस्टम पे मेरे नाम से. एक MGMU और MGMU में MSc है, MSc में MSc CS है. MSc CS में पाइथन प्रोग्रामिंग है और पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल्स है. और इसमें अपन सेव करेंगे फर्स्ट लाइन प्रोग्राम. फर्स्ट लाइन लिख दिया. इसका एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, पाई एक्सटेंशन देना है तो प्रोग्राम हो जाएगा सेव. तो अब ये प्रोग्राम हो गया सेव. ठीक है, अब इसको रन करूँ. यहाँ पे क्लिक करना है, रन करना है. तो ठीक है, क्या आउटपुट आएगा अब, ID 1 फर्स्ट नेम स्टीव लास्ट नेम जॉब. हाँ ये एक साथ में आना चाहिए. अब ये रन करने के बाद एक साथ आएगा. देखिए अब ये रन कर दिया तो एक साथ में आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा एक साथ. अभी आपने जो बताया था कि एक साथ नहीं आता है क्या, तो आता है, लेकिन इसको स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा. देन इट विल बी अपीयर. ओके.
यस सर। हाँ, तो दूसरा देखा है अपन ने कि व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, कमेंट स्लैश। सो joint two statement in this example we just studied, there is just press the enter key to separate the statement from one another. सपोज आपके पास टू स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट अगर है तो आपको सेकेंड स्टेटमेंट हो है वो आपको न्यू लाइन पे लेना है, तो जस्ट एंटर करना है, बस काम हो गया। तीन स्टेटमेंट है आपके पास तो तीन लाइन पे उसको लेना पड़ेगा, चार स्टेटमेंट है तो चार लाइन पे लेना पड़ेगा, पांच स्टेटमेंट है तो 5 लाइन पे आपको उसका कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट जोड़ना है यूज बैकस्लैश कैरेक्टर, तो आपको ये बैकस्लैश ज्वाइन करने के लिए यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड, पहला स्टेटमेंट है हेलो वर्ड, सॉरी पहला स्टेटमेंट है 200 इज लेस देन और इक्वल टू 300, ये पहला स्टेटमेंट है आपका। लेकिन इसी में आपको जोड़ना है ट्रू नॉट इक्वल टू ट्रू नॉट इक्वल टू फॉल्स, देन प्रिंट हेलो वर्ड। अगर ट्रू है स्टेटमेंट तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए अपन देखेंगे, प्लीज़ नोट दैट द बैकस्लैश कैरेक्टर स्पैन्स अ सिंगल स्टेटमेंट इन वन लॉजिकल लाइन एंड मल्टीपल फिजिकल लाइन बट नॉट द टू डिफरेंट स्टेटमेंट इन वन लॉजिकल लाइन। अगर दो डिफरेंट स्टेटमेंट है तो वन लॉजिकल लाइन में आप इसको नहीं ले सकते हैं। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है लेकिन सिंगल लॉजिक के है तो आप इसको ले सकते हैं, बैकस्लैश से ले सकते हैं। तो इसको आपको लेने के लिए एग्जीक्यूट करके देखेंगे अपन। इसका कोड जो है इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रोग्राम था अपना वो था स्टेटमेंट सेपरेट करने के लिए। ये जो है तीन स्टेटमेंट बन गए थे यहाँ पे, जस्ट प्रेसिंग द एंटर। अब ये तीन स्टेटमेंट अगर आपको जोड़ना है तो अपन न्यू प्रोग्राम लेंगे, इसको करते हैं सेव। ये है, इसको लिखेंगे अपन टू, नहीं अपन लिखेंगे इसको join अंडरस्कोर 2, join अंडरस्कोर 2 लिखा है। जस्ट मिनट, आई गॉट कॉल। हेलो हेलो सर, हां सर लॅबमध्ये आहे ना? हां 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 हो, लेक्चर चालू आहे 12:15 हाँ ठीक है ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये सेकंड प्रोग्राम है, ज्वाइन का प्रोग्राम है, इसीलिए आपने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। तो देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट क्या आएगा, दिखता है कि आपको ये बोलो, इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, राइट। इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। देखो ये सिंटैक्स एरर बता रहा है क्योंकि ये तो लाइन इसको जोड़ दी है लेकिन ये लाइन नेक्स्ट लाइन को नहीं जोड़ी है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा ऐसा। फिर से अपन इसको सेव करेंगे, सेव कर दिया और फिर रन करेंगे। क्या होगा है, वाइल स्कैनिंग द स्ट्रिंग लिटरल, एरर आ रहा है इसमें। ये क्या हुआ,
अपन ने हाफी प्रोग्राम लिया था, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आया था। देखेंगे अब क्या होता है। फिर से इसको सेव कर दिया। रन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव पूछता है। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गए। अभी इफ़ 100 इज़ ग्रेटर देन 99 एंड इसको जोड़ दिया है यहाँ पे 200 इज़ लेस देन और इक्वल टू 300 एंड यहाँ पे जोड़ दिया ट्रू इज़ नॉट फॉल्स। तो अपन ने पहले सिर्फ इतना ही लिया था। ये पहला जो स्टेटमेंट था अपना इफ़ वाला, ये नहीं था, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा था। तो इसका आउटपुट आ गया। अभी देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गए। अगर समझो आपने ये स्लैश निकाल दी तो क्या होगा देखते ही। ये स्लैश आपने निकाल दी, इसको रन कर दिया फिर से, तो आउटपुट क्या आएगा? सिंटैक्स एरर आ रहा। तो ये स्लैश क्या कर रही है? ये स्टेटमेंट को जोड़ रही है। ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे स्लैश यूज़ हो गई है। अपन फिर से देखते हैं कि ये स्लैश निकाल के, ये स्लैश मैंने निकाल दी और इसको ऐसा जोड़ दिया, एक ही लाइन में ले लिया। और ये स्लैश भी निकाल देते हैं अपन, नहीं एक स्लैश को रख देंगे, ठीक है। इसको अब रन करेंगे, क्या आउटपुट आएगा? रन हो जाएगा अब ये। अब होगा ना सर? सिद्धि अब ये रन होगा? सर नहीं होगा शायद, नहीं होगा शायद। रन होता है देखिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट जोड़ने के लिए तो स्लैश यूज़ करते हैं अपन। तो अपन ने ये मैन्युअली जोड़ दिया है, एक ही लाइन जो है दो कमेंट जोड़ दिए हैं। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आ गया हेलो वर्ड, हो गया है रन, ठीक है। अब ये भी अगर लाइन आपने जोड़ दी, ये नीचे की लाइन जोड़ने के लिए आपने क्या यूज़ किया था यहाँ पे बैक स्लैश। अगर ये निकाल दिया और ये स्टेटमेंट ले लिया यहाँ पे एक ही लाइन में, तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। देखो एग्जीक्यूट हो गए। अगर इसको जोड़ना है तो आप क्या बैक स्लैश यूज़ करते हैं। अगर मल्टीपल लाइन में है कोड, उसको जोड़ने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? बैक स्लैश यूज़ करते हैं, तो जोड़ जाता है। फिर से देखिए हो गया रन। तो ये बैक स्लैश क्यों यूज़ करना है यहाँ पे समझ में आया। अगर आपको दूसरी लाइन, दूसरा स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट में जोड़ना है, कंबाइन करना है, तो आप वहाँ पे बैक स्लैश यूज़ करेंगे। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस। ओके, तो नेक्स्ट है, अगर समझो ये तो होगा एक स्टेटमेंट, इफ़ से स्टार्ट हुआ था आपका स्टेटमेंट, इसलिए एक स्टेटमेंट था वो। अगर दो स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट आप बैक स्लैश से नहीं जोड़ सकते हैं। प्लीज नोट दैट द बैक स्लैश कैरेक्टर स्पैन्स a single statement in one logical line and multiple physical lines, but not two different statement in one logical lines। तो ये भी अपन देखेंगे। तो इसके लिए जोड़ने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा। प्लीज़ नोट दैट द बैक स्लैश अब ये पहला स्टेटमेंट हो गया है। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, इसका आउटपुट देखते हैं अपन क्या आता है, ठीक है। तो अपन लेंगे ये प्रोग्राम, इसको लिया स्क्रिप्ट में,
यहाँ पे लेते हैं न्यू फाइल, अपना पहला स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो, ये जुड़ जाएगा इससे वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ड इसका आउटपुट आएगा। अपना दूसरा स्टेटमेंट है हेलो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और प्रिंट कर दिया वर्ड, तो ये क्या हो गए टू, ये मल्टीपल लाइन में आपका कोड था ये जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका टू स्टेटमेंट इन वन लॉजिकल लाइन है, दो स्टेटमेंट है एक ही लॉजिकल लाइन में, हेलो और प्रिंट वर्ड। तो ये भी देखते हैं क्या आउटपुट क्या आएगा इसका। इसको सेव करते हैं अपन, ज्वाइन 3 नाम से सेव कर दिया, रन करते हैं तो सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो प्रिंट पहला तो हो गया आउटपुट और दूसरा जो है वो नहीं हुआ। अगर इसको आप सिर्फ इतना ही रख देते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? नहीं आया है, क्योंकि मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट में ये यहाँ पे बैक स्लैश कर दिया आपने। सॉरी, ये हेलो वर्ड नहीं चाहिए अपन को, ये इसका एरर था। अब देखते हैं, इसको रन करेंगे, आउटपुट देखेंगे, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है, हेलो वर्ड प्रिंट हो गए, ये दो वर्ड जुड़ गए एक साथ। अब देखते हैं दूसरा, ये एग्जीक्यूट होता है क्या? तो ये इसमें आ रहा है सिंटैक्स एरर। अब ये दो स्टेटमेंट अगर आपको जोड़ना है तो जुड़ जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये टू डिफरेंट स्टेटमेंट है, इसीलिए ये नहीं जुटेंगे। अगर एक ही स्टेटमेंट है आपका और उसको जोड़ना है तो आपको बैकस्लैश यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं आप, बैकस्लैश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग दो स्टेटमेंट है एक ही लॉजिक में तो वो नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये दो स्टेटमेंट है प्रिंट, ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट एक ही लॉजिक में आप डाल रहे हैं तो ये बैकस्लैश से ये नहीं जुटेंगे। अगर एक ही स्टेटमेंट है, मतलब एक ही बार आपने प्रिंट लिख दिया है और इसको बैकस्लैश कर दिया है, तो ये हो सकता है, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है इसका आउटपुट बराबर आएगा। देखिए आ गए बराबर। ठीक है, ये अब यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, लेकिन पहले एग्जांपल में हमने लिए थे ना 3 स्टेटमेंट, मतलब प्रिंट फर्स्ट नेम स्टेट, उसके बाद आईडी, उसका पहला आईडी था और फिर लास्ट नेम। नहीं, इफ लगाया था ना, पहला जो स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ था आपका इफ में, वो लूप में था ना, इफ था वहाँ पे। देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इफ है, तो अगर कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही कंडीशन, यहाँ पे क्लोज हो रही। ये मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और इसको आप जोड़ रहे हैं। अगर इसको आपने सिंगल लाइन में भी ले लिया तो ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको अगर एक लाइन में लिया तो ये नहीं प्रिंट होगा। समझो आपने
इसको निकाल दिया और ये इसको ऐसा लिखा, तो ये प्रिंट होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट है। यहाँ पे प्रिंट, दो फंक्शन आपने यूज़ किए, एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, इसीलिए ये सर ये एग्जाम हाँ। अब अगर इसको आप ऐसा लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए अब ये इसमें कुछ भी एरर नहीं आएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। हेलो और वर्ड सेपरेट सेपरेट दोनों भी प्रिंट होते हैं। लेकिन ये दो अलग अलग स्टेटमेंट अगर आप जोड़ना चाहते हैं स्लैश से तो वो नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो अलग है ना। अगर एक ही स्टेटमेंट है आपका और उसको आपको जोड़ना है तो आपको बैक स्लैश यूज़ करना है। मतलब आपका जो कोड है वो लंबा हो रहा, एक लाइन पे नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं स्लैश देके, बैक स्लैश यूज़ करके। यू कैन ज्वाइन by using backslash your code if the statement is becoming very long. You can join that statement. Your statement is a single statement, you can join that statement by using a backslash, but you cannot join two statement by using a backslash. Okay, is it understood? यस सर। Okay. सर मैं वो वाला एग्जांपल बोल रही थी जो आईडी लिया था, हाँ उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया था, तो उसमें भी हमने प्रिंट किया हुआ है ना, तो 3 लाइन एक साथ हुए थे ना सर। हाँ, ये 3 लाइन एक साथ हुए थे, राइट। तो वहाँ पे इफ स्टेटमेंट नहीं था ना, फिर वहाँ पे नहीं, फिर भी वो प्रिंट हुए थे। बराबर, राइट। वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था स्टेटमेंट। नहीं नहीं, ये 3 सेपरेट स्टेटमेंट थे, राइट। आपने बराबर सही बताया कि ये जो है प्रिंट एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट अलग अलग है। यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है, प्रिंट नाम का फंक्शन यूज़ किया है, इसीलिए इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। ये तो सेपरेट ही है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे एक लाइन में, ये एक लाइन में नहीं आएगा ना। यहाँ पे अगर स्लैश दिया है, यहाँ पे अगर स्लैश दिया, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है ना, ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो 3 का आउटपुट अलग अलग ही आएगा। अगर आपको इसको एक साथ लेना है तो आपको ये प्रिंट जो है ये हटाने पड़ेंगे, ये प्रिंट है ये हटाना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है और 3 डिफरेंट स्टेटमेंट के लिए आपको अगर कोड करना है पाइथन में तो इसको सिर्फ एंटर प्रेस करो, कोई ज़रूरत नहीं सेमीकोलन देने की, कोई ज़रूरत नहीं ब्रैकेट वगैरह कुछ देने की, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट, इसका सिंटैक्स है, ये खुद का सिंटैक्स है। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो उसको ब्रैकेट में लेना है, अगर वो नंबर है तो उसको कोटेशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर वो कैरेक्टर है तो उसको कोटेशन में लेना पड़ेगा, इतना उसका सिंटैक्स है। लेकिन अगर आपको न्यू स्टेटमेंट लिखना है तो जस्ट आप एंटर प्रेस कर दो और यहाँ पे लिख दो प्रिंट। प्रिंट में लिखो आप, समझो, एज, कॉमा देके जो भी आपका एज होगा वो आप लिख सकते हैं। तो ये और एक स्टेटमेंट आपने इसमें ले लिया है, ठीक है। हाँ, अब इसी स्टेटमेंट में अगर आपको जोड़ना है दूसरा कुछ इसी स्टेटमेंट में, तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी स्लैश। स्लैश यूज़ करके भी आप इसको, पहले अपन इसको रन करके देखते हैं, ये रन हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये रन होगा, ठीक है। और इसको अगर आपको जोड़ना है तो यहाँ पे आप स्लैश यूज़ करके इसको जोड़ सकते हैं। अब ये रन होगा क्या? यस सर। यस। तो ये अभी एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लॉजिक है और ये रन हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखते हैं होता क्या। हो गए।
एज 20। अगर ये दो स्टेटमेंट है, इसको अगर आपको जोड़ना है तो बैकस्लैश से आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ये एक ही स्टेटमेंट है लेकिन आपको नंबर ऑफ लाइन में इसको डिवाइड करना है, क्योंकि जो आपका जो कोड है वो बहुत सारा ऐसा लंबा हो जा रहा है और आपको वो नहीं दिख रहा है क्या है। तो इसको अगर आपको सेपरेट लाइन पे लेना है तो आप इसको बैकस्लैश यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और भी यहाँ पे आप यूज़ करके इसको ऐसा ले सकते। समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। तो यस सर। इसको भी आप मल्टीपल लाइन में नहीं जोड़ सकते, सिर्फ एक ही बार इसको आप एक इसमें जोड़ सकते हैं। मतलब इसको आप इसको अपन निकाल देंगे। नहीं, यहाँ पे आपको कोटेशन लेना पड़ेगा ना इसके लिए। ये जो है इसके लिए आपको कोटेशन लेना पड़ेगा, बराबर। कोटेशन है। हाँ, यहाँ पे आपको कॉमा देना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया रन। अब समझ में आया ये स्लैश का? यस सर। ये रन हो गया। इसका जो आउटपुट था एज, ये पूरा पूरा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। ये अपना 3 लाइन में अपन ने सेपरेट कर दिया था, लेकिन ये एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। हाँ, और भी समझो आपको यहाँ पे फिर से ये प्रिंट जो है करना है एड्रेस। समझो आपको लिखना है यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस में लिखना है आपको GYP। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे MGMU। क्या ये रन होगा? और यहाँ पे लिखेंगे अपन पिन कोड 4431001। क्या ये रन होगा? यस सर। यस सर। तो ये रन होगा क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट अलग इसमें आपने सेपरेट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे आपने अगर स्लैश डाल दी तो ये नहीं रन होगा। इसको देखते हैं अपन होता है क्या। तो ये रन हो गया। देखिए एड्रेस, GYP, MGMU, पिन, ये एक ही लाइन में आ गए। अगर यहाँ पे आपने स्लैश डाल दी, ये प्रिंट स्टेटमेंट एंड होने के बाद, तो 2 लॉजिकल स्टेटमेंट आप, ये जो है एक सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये एक सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये 2 लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो ये 2 लॉजिकल स्टेटमेंट आप नहीं जोड़ सकते, एक ही जोड़ सकते। समझ में आया ये? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। ओके। यस। तो अपन नेक्स्ट जाते हैं। एक्सप्रेशंस इन parenthesis, square bracket or curly bracket can be spread over multiple line without using the
बैकस्लैश। हाँ, अगर आपको ज्वाइन करना है स्टेटमेंट तो आप दूसरा एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, वो है एक तो ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, या ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करके आप मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि लिस्ट, यहाँ पे लिखा है लिस्ट इक्वल टू ब्रैकेट में लिस्ट ले ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो ये ब्रैकेट में है इसलिए ये भी लिया जाएगा, इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो देखते हैं इसका आउटपुट। इसको करेंगे अपन कॉपी और लेते हैं यहाँ पे न्यू प्रोग्राम, इसमें कर दिया पेस्ट। इसको सेव करते हैं अपन सेव एज। ये क्या है, लिस्ट है, लिस्ट, और ये चौथा प्रोग्राम है आपका, तो इसीलिए आप सेव करेंगे लिस्ट 4 नाम से। इसको सेव कर दिया। अगर इसको रन कर दिया तो सिंटैक्स एरर आ रहा है, सिर्फ आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। प्रिंट लिस्ट नहीं होगा ये, तो इसको जोड़ सकते हैं आप, समझो ऐसा, इसको जोड़ दिया। अच्छा, सर हमने वो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज़ किया है इसलिए। इसको अपन 1 मिनट के लिए हटाते हैं। ये प्रोग्राम रन हो गया लेकिन इसका आउटपुट नहीं आया क्योंकि आपने प्रिंट नहीं किया। इसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, लिस्ट। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये वेरिएबल में आपने लिस्ट स्टोर कर दी है, तो इसको प्रिंट करने के बाद ये जो है प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं क्या एरर आता है। ये देखिए लिस्ट प्रिंट हो गई, पूरे नंबर जो है प्रिंट हो गए एक ही लाइन में, क्योंकि यहाँ पे आपने ब्रैकेट यूज़ कर दिया और इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया था। पहले इसमें क्या एरर आया था, आपने कॉमा मिस किया था। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर आपने ब्रैकेट या एक्सप्रेशन के लिए पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट अगर यूज़ किया तो मल्टीपल लाइन विदाउट बैकस्लैश you can join in a statement. Hope it is understood to you. Next है indentation in Python. Leading space or tab at the beginning of the line is considered. अगर आपने स्पेस दिया है या टैब प्रेस की है लाइन स्टार्ट होने के बाद तो वो कंसिडर होती है और उसको बोलते हैं इंडेंशन लेवल, इंडेंशन लेवल ऑफ द लाइन, which is used to determine the group of statement with the same level of indentation considered as a group or block. इंडेंशन क्या कहते हैं, अगर लाइन स्टार्ट होने के स्टार्ट में, शुरुआत में अगर आपने स्पेस या टैब यूज़ कर दी है, कुछ स्पेस है या टैब यूज़ कर दी है तो उसको बोलते हैं इंडेंशन। तो इंडेंशन कब यूज़ होता है, अगर आपको बताना है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है
या एक लेवल है स्टेटमेंट की, जैसे कि समझो इफ़ यूज़ कर दिया आपने, उसके बाद फॉर यूज़ कर दिया, उसके बाद समझो प्रिंट यूज़ कर दिया, तो स्पेस दे के थोड़ा सा स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में स्पेस दिया तो उसको इंडेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन, classes or loops in a Python contain a block of statement to be executed. Other programming languages such as C#, or C#, Java use a curly bracket. Curly bracket use करते हैं Java में to denote the block of code. Python use a indentation, a space or a tab to denote the block of statement. जैसे कि समझो आपको अगर कुछ लिखना है, if a is greater than b, तो प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कुछ मैसेज, समझो हेलो मैसेज आपको प्रिंट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मार्जिन आपने छोड़ दी और ये इफ़ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे एक स्पेस है, ये स्पेस दिख रहा है आपको, तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंडेंशन। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एंड हो गया, ये स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर दूसरा स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखा तो इतनी जो स्पेस होगी, ये स्पेस होगी इंडेंशन। एग्जाम्पल भी देखेंगे। इंडेंशन के कुछ रूल्स है। यूज द कोलन टू स्टार्ट अ ब्लॉक एंड प्रेस एंटर। अगर ब्लॉक आपको स्टार्ट करना है तो आपको कोलन यूज़ करना है, इंडेंशन का पहला रूल है। दूसरा रूल है ऑल द लाइन इन अ ब्लॉक मस्ट बी सेम इंडेंशन। एक ब्लॉक में अगर आपने कुछ लाइन लिखे हैं तो उसका जो स्पेस है सेम इंडेंशन से वो स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा तो दूसरा भी स्टेटमेंट यही से स्टार्ट होना चाहिए, प्रिंट। ये एक ही ब्लॉक है इसीलिए इसकी स्टार्टिंग जो है सेम है, बिगिनिंग जो है सेम एंड से हो रही है। लेकिन अगर ये अलग अलग है तो इसको आप कैसे लिखेंगे? प्रिंट और प्रिंट। यहाँ पे इंडेंशन, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है और ये अलग ब्लॉक है। अगर ये सेम ब्लॉक में है तो इसको आप लिखेंगे एक ही साथ में, अगर ये अलग अलग ब्लॉक के है तो इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ऑल द लाइन इन अ ब्लॉक मस्ट बी यूज द सेम इंडेंशन आइदर स्पेस और टैब। तो आप उसको सेम स्पेस में लेते थे अगर एक ही ब्लॉक है तो, अगर वो अलग है तो डिफरेंट स्पेस और टैब यू कैन यूज फॉर different statement. Python recommended 4 space as indentation to make the code more readable. Do not mix space and tab in the same block. आपको सेम ब्लॉक में स्पेस और टैब का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको भी आपको ख्याल में रखना है, इसके ऊपर भी कुछ ख्याल रखना है। A block can have inner block with next level indentation. एक ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक भी हो सकता है ऐसा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ऑफ पाइथन ब्लॉक। इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया और ये यहाँ पे इंडेंशन किया, ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, तो ये सेम स्पेस पे है क्योंकि ये एक ही ब्लॉक में है, ये इफ ब्लॉक में है। और दूसरा इफ यहाँ से, दूसरा ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट, तो ये देखिए यहाँ पे इनर ब्लॉक है, इसमें एक इनर ब्लॉक है तो इसका इंडेंशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। सेकेंड ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो गया, एल्स इफ सेकेंड ब्लॉक उसका
स्टेटमेंट उसका सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ब्लॉक का सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको, लेकिन उसके पहले अपन एक बार कमेंट भी ले लेते हैं, क्योंकि अपने पास शायद टाइम कम बचा है। कमेंट इन पाइथन स्क्रिप्ट द हैश सिंबल इंडिकेट स्टार्ट ऑन अ कमेंट लाइन, इट इज इफेक्टिव till the end of a new line in a text editor. Example hash, this is a comment, print hello world, print welcome to Python tutorial। यहाँ से भी एक कमेंट लिख दिया, यहाँ पे भी आप एक कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट अगर हैश आपने लिख दिया तो वो जो पार्ट है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें अगर कुछ एरर है तो वो एरर एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस लाइन को छोड़ देगा प्रोग्राम, जो है एग्जीक्यूशन टाइम में उस लाइन को छोड़ देगा, कंसीडर नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या यूज़ करना है, उसमें हैश यूज़ करना है। अगर सिंगल लाइन की कमेंट है तो हैश यूज़ करना है, लेकिन in Python there is no provision to write multiple line comment or a block comment. For multiple line comment each line should have a symbol, हर लाइन को आपको सिंबल देना पड़ेगा ऐसा हैश, अगर वो मल्टीपल लाइन कमेंट है तो स्टार्टिंग में। लेकिन ए ट्रिपल कोट मल्टीपल लाइन स्टार्ट इज also treated as a comment if it is not डॉक्टरिंग ऑफ द फंक्शन और द क्लास। ये ऐसा ट्रिपल डॉट जो है, आप ट्रिपल डॉट भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लाइन को, अगर आपको ब्लॉक को पूरा का पूरा कैंसिल करना है एग्जीक्यूशन से, तो आप मल्टीपल लाइन डॉट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकली भी देखेंगे अपन, प्रैक्टिकली भी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोई बात नहीं। पहला था अपना ब्लॉक का, तो ब्लॉक का देखते हैं। अगर समझो आपने ले लिया है तीसरा चौथा प्रोग्राम न्यू लाइन, न्यू लाइन में जाएंगे अपन, वहाँ पे पेस्ट कर दिया ये, तो ये इंडेंशन का प्रोग्राम है, इसको आप सेव करते हैं इंडेंशन नाम से, इंडेन 5 इंडेंशन का प्रोग्राम है। यह एग्जीक्यूट होगा अब, इंडेंशन का प्रोग्राम है और इसमें हैश भी यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे हैश, तो ये सिंगल लाइन, इसको कमेंट कर दिया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको हैश है। ये यहाँ से ये भी नहीं होगा, इसको हैश लगाया है, इसलिए वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। हैश के बाद के जो भी कंटेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन अगर दूसरे लाइन पे है तो वो एग्जीक्यूट होगी। इसको रन करके देखते हैं, सिंटैक्स एरर आ गया है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसमें इसको करते हैं क्लोज, देखते हैं अब होता क्या। इसको ही हटाते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया है। इफ़ यहाँ पे इंडेंशन लिखा है प्रिंट 10, अगर 5 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दिया है 5 इज़ ग्रेटर देन 10 इज़ ग्रेटर देन 5। और नाउ चेक 20 is greater than 10. If 20 is greater than
10, देन प्रिंट कर दिया 20 इज़ ग्रेटर देन 10। तो आउटपुट देखिए आप क्या डिस्प्ले हो गया है, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, नाउ चेक 20 इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो यहाँ पे आप इंडेंशन यूज़ करते हैं और स्लैश भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अपन डॉट का, और उसके बाद आप नेक्स्ट मल्टीपल लाइन कमेंट का देखते हैं। एक मिनट में अपन ख़त्म कर देंगे लेक्चर को। ये मल्टीपल लाइन कमेंट कर दिया है, इसको सेव करते हैं। कमेंट 5 हेलो सर, हो आलो सर। हाँ, इसको सेव कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये पूरा के पूरा कमेंट है। ये 3 डॉट यूज़ करके ये कमेंट हो जाता है, तो इसमें एरर भी नहीं आता कुछ और आउटपुट भी नहीं आता। तो इस टाइप से we have seen today the basic syntax of the Python. If you have any doubt regarding this, you can ask me question, otherwise we will stop here and remaining part we will see in a next lecture. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, Yes. sir. तो क्या आप थोड़ी देर के लिए, थैंक यू वेरी मच।